I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1. So dear all, we are going to start. Yes, you are right. As you can see in your screen, lipids. Just see your syllabus. Unit number 5, lipids, which include waxes, fats and fixed oils. And we have to cover these drugs, that is the castor oil, chol mugra oil, wool fat and beeswax. So in our syllabus we have 4 drugs to cover under lipids category. So let's start the general introduction of first of all of lipids, which include waxes, fats and fixed oil. Then we will start these drugs. Yes, as you can see, so we have waxes, fats and fixed oil in our syllabus, and these are the 4 drugs. So let's start the basic introduction of lipids first. So what are lipids? Lipids are the substances of plant or animal origin. It might be obtained from the plant and also from the animal sources. We will see some of the examples also. And they are comprised of fixed oil, fats and waxes. So lipids comprise of these 3 things: fixed oil, fats and waxes. So what is the basic function of, you can say, oils and fats? The basic function of oil and fats is storage of energy, and it has several uses in medicinal as well as in the industries. So always remember one thing: when we talk about the fixed oil, you must be clear the difference between fixed oil and volatile oils. I hope you remember about the volatile oils. As you can see in your screen, this is the example of volatile oil, that is eucalyptus oil, or if you type here clove oil, again example of volatile oil. So what are volatile oils? Which, yes, volatilize at room temperature, whereas fixed oil remain stationary or fixed at room temperature. As you can see, the most common example of fixed oil that we use in our kitchen is the mustard oil. तो suppose करिए आपने मस्टर्ड ऑयल की बोतल ली एक तरफ और दूसरी तरफ आपने यूकलिप्टस ऑयल या किसी और वोलेटाइल ऑयल का सैंपल लिया in the bottle, and you will kept it under a room temperature. तो होगा क्या? सपोज आपने ढक्कन ओपन करके रख दिया है, तो कुछ समय बाद क्या होगा? volatile oil will evaporate at room temperature at ordinary temperature, whereas the fixed oil remains stationary. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो I hope this is clear. तो fixed oil they remain stationary at the room temperature, whereas the volatile oil they evaporate or volatilize. That's why they are known as the volatile oils. So again you have to remember this. The basic function of oils and fat, we are talking about the lipids, is the storage of energy. तो basic function क्या है? प्लांट के अंदर किसी भी ऑयल और फैट का, प्लांट, why plant need fats and oil? So they serve as a reserve food material basically. Okay, and they are obtained by expression or extraction methods. तो सपोज करिए आपने सरसों का तेल निकालना है, तो सबसे कॉमन मेथड हम जो यूज करते हैं, दैट इज द एक्सप्रेशन. उसको प्रेस करेंगे, बेसिकली सीड्स से हम ज्यादातर ऑब्टेन करते हैं फिक्स ऑयल. तो सीड्स को हम प्रेस करेंगे एंड वी विल ऑब्टेन द ऑयल. इन द सेम वे बाकी जो फिक्स ऑयल है उसमें, जैसे सपोज एग्जांपल इज गिवन तिल ऑयल. अगर आपने तिल का तेल निकालना है, नेचुरल सी बात है, यू हैव अ सीड, यू विल एक्सप्रेस इट, देन यू विल ऑब्टेन द ऑयल. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द वोलेटाइल ऑयल, तो वोलेटाइल ऑयल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेशल डक्ट, ग्लैंड और कैविटीज. जैसे सपोज करिए आपने मेंथा ऑयल, इस पुदीने के पत्ते से ऑयल निकालना है, वोलेटाइल ऑयल की बात हो रही है क्योंकि मिंट कंटेन वोलेटाइल ऑयल. तो इसको निकालने के लिए अलग मेथड यूज करेंगे हम, जैसे हाइड्रो डिस्टिलेशन. वो भी हमारे सिलेबस में हम डिटेल में करेंगे. तो ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है. वोलेटाइल ऑयल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेशल सेल, डक्ट्स एंड ग्लैंड, और ज्यादातर जो फिक्स्ड ऑयल है वो हमें सीड पार्ट में देखने को मिलता है. Yes, the next point is several tests and standards such as the saponification value, iodine value, solubility in different solvents and specific gravity are considered for determining the purity and identity of the lipids or the oils. बहुत सारे स्पेसिफिक टेस्ट हम करते हैं किसी भी ऑयल की आइडेंटिटी और क्वालिटी और प्योरिटी का पता लगाने के लिए. जैसे एग्जांपल्स दिए हैं, सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू निकालते हैं अगर आपने इवैल्यूएशन करनी है किसी भी लिपिड की या फिक्स ऑयल की. इसी के साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सॉल्युबिलिटी भी हम चेक करते हैं. आपको आयोडीन वैल्यू की डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन भी याद रखनी है. व्हाट इज आयोडीन वैल्यू? इट इज द मास ऑफ द आयोडीन इन ग्राम कंज्यूम्ड बाय
100 gram of fats or oil. So what is iodine value? It is the mass of the iodine in gram that is consumed by 100 gram of fats or oil. Second one is the saponification value. So it is the number of milligram of KOH, that is potassium hydroxide, required to saponify 1 gram of fat under specified condition. तो ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, आयोडीन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू. देयर आर अदर पैरामीटर्स लाइक हाइड्रोक्सी वैल्यूज आल्सो देयर, एस्टर वैल्यूज आल्सो देयर. तो हम करेंगे इनको जब हम प्रैक्टिकल्स में आएंगे. तो फिलहाल आप इतना ही याद रखें, आयोडीन वैल्यू एंड सैपोनिफिकेशन वैल्यू. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो सेवरल टेस्ट सच एज सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, सॉल्युबिलिटी भी करते हैं. इन द सेम वे स्पेसिफिक ग्रेविटी आर कंसिडर्ड फॉर डिटरमिनिंग देयर प्योरिटी एंड आइडेंटिटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द category. The lipids can be characterized as follows: simple lipids, compound lipids and derived lipid. तीन तरह के lipids हम पढ़ेंगे, simple lipids, compound and derived. The simple lipids contain oil, fats and waxes. Compound lipid contain phospholipids, glycolipids and lipoprotein. And what is derived lipids? They are the fatty acid and the cholesterol. So you have to remember these three categories: simple lipids, compound and derived one. Please see the syllabus again. We have to focus upon the fat, fixed oil and the waxes only. So let's start the fixed oil and fats. So what are these fixed oil and fats? So these are the reserve food materials of the plants and animals, and those which are liquid at 15.5 to 16.5 degrees Celsius are fixed oil. Again I am repeating, there is a slight difference between the two. Both margins are difference between fixed oil and fats. Those which are liquid at 15.5 to 16.5 degrees Celsius are fixed oil, whereas those which are solid or semi-solid at above temperature are referred to as fats. So I hope this is clear. तो fixed oil क्या होंगे? जो liquid रहेंगे at 15.5 to 16.5 degrees Celsius, whereas जो semi-solid और solid की फॉर्म में हमें मिलेंगे at above temperature, उन्हें हम fats की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. For example, this is the wool fat. Another example of fat is the lard. This is obtained from, so lard is also known as pig fat. So I hope this is clear. That is the fixed oil and fat. So if we talk about fixed oil, the fixed oil are generally derived from the plant sources and occur in the seed. Generally हमें fixed oil plant sources से मिलते हैं और ये generally seed में present होते हैं. There are few characteristics also, properties of fixed oil. क्या है? They are thick, viscous, thick होंगे, viscous होंगे, येलो कलर्ड, जनरली येलो कलर होंगे. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. जरूरी नहीं है कि हर बार हमें येलो कलर में ही फिक्स्ड ऑयल मिले. विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इनका ऑर्डर भी होगा. यस, आपने बादाम रोगन या आलमंड ऑयल जरूर देखा होगा. तो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ यस फिक्स्ड ऑयल्स. सो दे आर नॉन वोलेटाइल. यस, दे आर नॉन वोलेटाइल बिकॉज वोलेटाइल ऑयल अलग है. जैसे पेपरमिंट ऑयल की बात करें, क्लव की बात करें, यूकलिप्टस की बात करें, they contain the volatile oils, but fixed oil they are non volatile and cannot be distilled. तो डिस्टिल कौन से होंगे? volatile oil can be distilled. तो volatile oils को निकालने के लिए हम हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं, कि हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, देन द फिक्स्ड ऑयल डू हैव अ फूड वैल्यू. फिक्स्ड ऑयल की फूड वैल्यू भी होती है एंड दे कैन बी सैपोनिफाइड. अभी हमने पढ़ा सैपोनिफिकेशन के वैल्यू के बारे में. नेक्स्ट पॉइंट, they turn rancid on storage due to free acidity. This is very important point. What is this rancidity? It is the condition produced by the oxidation of the unsaturated fat present in the foods and other products, and it is marked by the unpleasant odor or flavor. Suppose करिए आपने घी रख दिया और काफी लंबे समय के लिए आपने घी को स्टोर कर दिया. तो कई बार होता है, कई बार घी को जब आप लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं तो उसमें एक फाउल स्मेल आ जाती है. तो उसको सिंपली अगर आप हीट करो तो स्मेल चली भी जाती है. तो दैट इज नोन एज ए रेंसिडिटी बेसिकली, जो कि ज्यादातर हमें ऑक्सीडेशन से, और हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी भी होती है जिसमें क्या हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस होते हैं. तो इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ द अनप्लेजेंट स्मेल इन द फैट्स एंड ऑयल्स. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द केमिकल नेचर, तो फैट्स एंड ऑयल्स आर एस्टर ऑफ ग्लिसरोल्स एंड वेरियस स्ट्रेट चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज फैटी एसिड. तो इसको आपको याद रखना है. Fats and oils are the esters of glycerols and various straight chain monocarboxylic acid known as fatty acids. Please see the structure of glycerol. This is a glycerol.
This is the monocarboxylic acid. So repeat again, what are fats and oil? These are the ester of glycerols and various straight chain monocarboxylic acid known as the fatty acids. And generally दो तरह के फैटी एसिड्स के बारे में हम सुनते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या एग्जांपल्स आएंगे? जैसे ब्यूटारिक एसिड फ्रॉम बटर फैट, लॉरिक एसिड फ्रॉम कोकोनट ऑयल, पाल्मिटिक एसिड फ्रॉम एराकिस ऑयल और सीसमम ऑयल. Okay, stearic acid from arachis oil. Please see this is arachis oil. Yes, मूंगफली का तेल. And the unsaturated fatty acid include linolenic acid, linoleic acid, arachidonic acid and oleic acid. Obtained from, जैसे suppose करिए linolenic acid obtained from linseed. This is the alsi, that is linseed oil. This is again very famous recipe of the flaxseed or linseed, that is alsi के लड्डू और अलसी की पिन्नी. Please see the syllabus. We have completed the fats and fixed oil. Now let's start the waxes. The waxes are unctuous, fusible and variably viscous solid substances with characteristic waxy luster. तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है. unctuous का मतलब क्या है यहाँ पे? oily nature and they have a waxy luster. Yes, the most common example is beeswax. There is another important example of wax is the spermaceti wax. It is obtained from the sperm. Yes, इस sperm whale से हम spermaceti wax obtain करते हैं. Very very important. So again, the waxes are the esters of fatty acids with high weight monohydric alcohol such as cholesterol, cetyl alcohol, etc. तो आपको याद रखना है व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ वैक्सेस. दे कंटेन हाई वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सच एज कोलेस्टेरोल और सिटाइल अल्कोहल. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरोल. दिस इज सिटाइल अल्कोहल. सो द वैक्सेस आर जनरली insoluble in water but soluble in most of the organic solvents and they are obtained from vegetables and animal sources. Please recall again, we have completed the waxes, fats and fixed oil now. So let's start our plants: castor oil, cholmugra oil, wool fat and beeswax. So in Hindi, castor is generally known as the arandi ka पौधा. Here it is, this is the plant, that is the castor, as you can see. So we obtain basically from this seed part is obtained and then oil is processed. So this is very very beneficial oil. Let's see what is the biological source, chemical constituent and uses of this oil. Let's start. So also known as the resinous oil, it is obtained by the cold expression. तो expression method से obtain करेंगे किससे? seed part से. plant का नाम है Ricinus communis belonging to the family Euphorbiaceae. I am repeating again, castor oil is the fixed oil obtained by cold expression of the seeds of Ricinus communis belonging to family Euphorbiaceae. So this is the biological source. Okay, suppose करिए अब जैसे suppose इसके नाम के आगे इस जीनस है, दिस स्पीशीज LINN लिखा है, तो लिन का मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज द नेम ऑफ द टैक्सोनोमिस्ट और द बॉटनिस्ट हु आइडेंटिफाइड दिस प्लांट. तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लिखते हैं, लेकिन जनरली अगर आप इसको स्किप भी करेंगे तो चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो कई बार आपको लिन देखने को मिलेगा या कोई और 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स में आपको शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलती है. दैट इज द नेम ऑफ द टैक्सोनोमिस्ट और बॉटनिस्ट हु आइडेंटिफाइड दिस प्लांट. तो castor oil is obtained from the cold expression of the seeds of Ricinus communis belonging to family Euphorbiaceae. If we talk about geographical location, it is found in India, Brazil, America, China, Thailand. And अगर इंडिया की बात करें तो गुजरात और आंध्रा और कर्नाटका में इसे हम ग्रो करते हैं. इट इज ऑल्सो फाउंड इन हिमाचल प्रदेश. इफ यू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन, तो ऑयल कैसे ऑब्टेन करेंगे? नेचुरल सी बात है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड पार्ट, कैस्टर सीड्स. प्लीज सी, दिस इज द कैस्टर सीड्स. यहां से हम कैस्टर ऑयल ऑब्टेन करते हैं सीड से. सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग, दैट इज आइदर आफ्टर द रिमूवल ऑफ द सीड कोट और विद द सीड कोट. सीड कोट के साथ भी हम रिमूव ऑयल ऑब्टेन करते हैं और विदाउट सीड कोट हम ज्यादातर ऑब्टेन करते हैं. सो लेट्स सी द प्रोसीजर. द सीड कोट्स आर रिमूव्ड बाय क्रशिंग द सीड्स अंडर द ग्रूव्ड रोलर्स.
तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ ग्रूव्ड रोलर वी विल रिमूव द सीड कोट बाय, सो दिस इज अ फोटोग्राफ रेडी टू ग्रूव्ड रोलर। तो इस तरह के रोलर्स हम यूज करते। देन दे आर सब्जेक्टेड टू अ करंट ऑफ एयर टू ब्लो द टेस्टास। बेसिकली ये सीड का ही पार्ट है। अब ये टेस्टा क्या है, ये बाहर वाली लेयर को हम टेस्टा बोलेंगे और ये अंदर वाली टैगमेन बोलेंगे। देन कोटिलिडन और एम्ब्रियो पार्ट हो गया। तो ये आपने कैस्टर सीड का इतना सा याद रखिए, बाहर वाला क्या है टेस्टा, अंदर वाला टैगमेन। प्लीज सी दिस फोटोग्राफ ऑल्सो अगेन, ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। देन टेस्टा रिमूव करने के बाद द कर्नल्स, जो उसके अंदर की गिरी होगी, कर्नल जिसको हम बोलेंगे, दीज आर फेड इनटू ऑयल एक्सपेलर एट द रूम टेम्परेचर, और एक्सप्रेशन के जरिए उसमें हम प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड वी विल ऑब्टेन द ऑयल। प्लीज सी दिस इज द कर्नल आफ्टर रिमूवल ऑफ द सीड कोट के बाद ये पार्ट होगा हमारे पास कर्नल। तो इसमें से हम ऑयल ऑब्टेन करेंगे बाय एक्सप्रेशन। देन व्हाट विल वी डू, द ऑयल इज देन फिल्टर्ड, स्टीम करेंगे एट 80 to 100 डिग्री सेल्सियस टू फैसिलिटेट द कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द पॉइजनस प्रिंसिपल रिसिन। तो इस सीड के अंदर एक बहुत ज्यादा पॉइजनस कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उसकी कोगुलेशन के लिए, उसको रिमूव करने के लिए वी विल दो फॉलो द प्रोसीजर ऑफ हीटिंग, और वी कैन से द स्टीमिंग प्रोसीजर in which this resin compound is precipitated. Then the oil is filtered and this oil with 1% acidity is used for the medical purpose. तो इसको हम medical purpose के लिए यूज करेंगे। अब जो resin वाला पार्ट बच गया, हम उसको भी यूज करते हैं इंडस्ट्री में। किस तरह से, the oil cake which contain the resin, basically this cake is grounded, इसको भी हम स्टीमिंग करेंगे up to 40 to 80 degree Celsius, and finally pressure is applied and we will obtain a second quality of oil which contain 5% acidity and it is used for the industrial purpose. 1% को हम medical purpose के लिए यूज करते हैं and 5% को हम industrial purpose के लिए यूज करेंगे। Please see this is the castor oil जो हमें आमतौर पे मार्केट पे देखने को मिलता है। It is very much used internally और externally भी इसका यूज करते हैं। If we talk about the description, तो कलर कैसा है, it is pale yellow, और कई बार हमें कलरलेस लिक्विड भी देखने को मिलता है। Odor, slight and characteristic odor. So it is a viscid liquid which has slight odor with slightly acrid taste. इसका acrid taste है थोड़ा सा। Acrid का यहाँ पे मतलब है तीखा, काफी तीखा टेस्ट है इसका। It is soluble in absolute alcohol. Specific gravity, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, सपोनिफिकेशन एंड आयोडीन वैल्यू, ये सभी के सभी पैरामीटर हम स्टडी करते हैं जब भी हम किसी वोलेटाइल ऑयल के केस में भी करेंगे और फिक्स्ड ऑयल के केस में खास तौर पे हम निकालते हैं। ओके, तो सपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू तो वोलेटाइल ऑयल के केस में नहीं आएगी, ये सिर्फ फिक्स ऑयल के केस में आएगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वोलेटाइल ऑयल के केस में भी करेंगे, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादातर हम फिक्स्ड ऑयल के केस में करते हैं क्योंकि वो ज्यादा विस्कोस होते हैं। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, जैसा कि इस प्लांट का नाम क्या है, रिसिनस कॉम्युनिस, तो रिसिनस से नाम से मिलते जुलते ही इसके केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ, एज यू कैन सी, ग्लिसराइड ऑफ रिसिनोलिक एसिड, आइसो रिसिनोलिक स्टीरिक एंड डाइहाइड्रोक्सी स्टीरिक एसिड्स। तो अब एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं रिसिनोलिक एसिड का। प्लीज सी दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द रिसिनोलिक एसिड। तो ये फैटी एसिड ही है, अभी हमने डिस्क्रिप्शन की थी फैटी एसिड्स की, तो इसी तरह के हमें फैटी एसिड देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर्स। देन दिस रिसिनोलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्सेटिव प्रॉपर्टी। तो ये परगेटिव और लैक्सेटिव यूज होता है क्या, कैस्टर ऑयल। इट ऑल्सो कंटेन विटामिन एफ ऑल्सो। 90% ऑफ द फैटी एसिड इज द रिसिनोलिक एसिड। तो रिसिनोलिक एसिड इज अ मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दिस प्लांट। तो फिलहाल आप इतना ही याद रखें अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कैस्टर ऑयल। एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप याद रख सकते हैं। अगर इसको अबाउट 5 ml ऑफ द लाइट पेट्रोलियम ईथर व्हेन मिक्स्ड विद 10 ml ऑफ कैस्टर ऑयल, इट शोज अ क्लियर सॉल्यूशन, बट इफ द लाइट पेट्रोलियम इज इंक्रीज टू 15 ml, द मिक्सचर बिकम टर्बिड। अपने ऑयल ले लिया, कैस्टर ऑयल को आपने मिक्स करना है लाइट पेट्रोलियम ईथर से। अगर 10 ml है तो क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, अगर 15 ml करेंगे मतलब इंक्रीज करेंगे लाइट पेट्रोलियम ईथर, देन वो सॉल्यूशन आपका टर्बिड बन जाएगा। दिस इज अ सिंपल टेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ द कैस्टर ऑयल। इट इज यूज्ड एज अ माइल्ड परगेटिव, देन also used in the ointment base as a plasticizer, wetting agent, as a lubricating agent also.
तो आपने याद रखना है मेजर यूज क्या है इसका, पर्गेटिव की फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो ये वाटरी स्टूल्स ला सकता है, बहुत ही कम डोज यूज करते हैं एज अ पर्गेटिव। ओके, ऑल्सो यूज एज द फंगिस्टैटिक एजेंट अगेंस्ट एंटीफंगल and ointment base. Then ricinoleic acid is used in the contraceptive creams and jellies. It is also used as an emollient in the preparation of lipstick, in the tooth formulation, as an ingredient in hair oil. तो हर जगह पे जितने भी हमारे कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हैं उसमें हम जो कैस्टर ऑयल है बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ओके, और इंडस्ट्री में भी द मेन यूज ऑफ द कैस्टर ऑयल इन द, इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री इज ऑफ कोटिंग, तो कोटिंग में भी इसको हम यूज करते हैं एज अ कोटिंग मटीरियल। Also and also in the leather industries for the manufacturing of the plastics and fibers. Please see this, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है जिसमें हम कैस्टर ऑयल को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज इज द यस कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स और जेलीज में भी इसको यूज करते हैं। एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, जैसे जो इसका पर्गेटिव और कथाटिक यूज जो है, इट इज ड्यू टू द इरिटेंट एक्शन ऑफ द रिसिनोलिक एसिड। रिसिनोलिक एसिड की वजह से ही इसका कथाटिक और पर्गेटिव यूज है। कैस्टर केक का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो कैस्टर की प्रोसेसिंग में लास्ट में ये जो मटेरियल बचेगा जिसे हम कैस्टर केक बोलेंगे, तो बेसिकली इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ द एंजाइम लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए भी हम कैस्टर केक को यूज। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो वी हैव कंप्लीटेड द प्लांट कैस्टर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्लांट, दैट इज द चोल मोगरा ऑयल। प्लीज सी द फोटोग्राफ, दिस इज द चोल मोगरा सीड। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द हिडनोकार्पस ऑयल। तो इट इज ऑब्टेन, इट इज अ फिक्स्ड ऑयल, हमें पता है हम फिक्स्ड ऑयल पढ़ रहे हैं। तो चोल मोगरा ऑयल क्या है, इट इज अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय द कोल्ड एक्सप्रेशन, यस, फ्रॉम द राइप सीड्स। ये भी सीड के द्वारा हम ऑब्टेन करते हैं, मेथड है कोल्ड एक्सप्रेशन। प्लांट का नाम है टेरेक्टोजिनस कुर्जी, और एक और नाम है इसका, नाम से साइनोनिम से मिलता जुलता, इट इज हिडनोकार्पस। तो यहां से आ गया हिडनोकार्पस कुर्जी। तो आपने दो स्पीसीज याद रखे, टेरेक्टोजिनस कुर्जी KURZII, दूसरा नाम है हिडनोकार्पस कुर्जी। तो ये आसान है मेरे हिसाब से, तो हिडनोकार्पस कुर्जी आप याद रखें। और एक चीज आपको याद रखनी, जब भी आपने बायोलॉजिकल सोर्स में खासतौर पे बोटेनिकल नेम और जीनस और स्पीसीज लिखनी है, स्पेलिंग्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपने स्पेलिंग गलत की, एक भी वर्ड की, सारा गलत हो जाएगा। तो आपको ये याद रखनी है स्पेलिंग से, तो याद करे, कोशिश करो स्पेलिंग याद रखने की। अब हिडनोकार्पस कुर्जी। सो व्हाट इज द फैमिली, फ्लाकोटिएसी। Flaccotiaceae is the family. As you can see, this is the images related to the चौल मोगरा। तो इस तरह से ये हमें प्लांट देखने को मिलता है। इसके यहाँ से हम, इसके फ्रूट से हम, अंदर सीड से, देन वी विल ऑब्टेन दिस ऑयल, दैट इज द चौल मोगरा ऑयल। ओके, तो इसमें कुछ ट्रेसेस में वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अभी हम फिक्स ऑयल पढ़ रहे हैं तो हम फिक्स ऑयल पे ही फोकस करेंगे। हाँ बिल्कुल, एक प्लांट के अंदर एक वोलेटाइल ऑयल भी हो सकते हैं और फिक्स ऑयल भी साथ में हो सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है प्लांट इज अ मिक्सचर। तो वैसे भी प्लांट के अंदर मिक्सचर प्रेजेंट होता है। इफ यू टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल, इट इज फाउंड इन द बर्मा, थाईलैंड, ईस्टर्न इंडिया एंड इंडो चाइना एरिया। इफ यू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, तो देखने में कैसा है, दिस ऑयल इज येलो और ब्राउनिश येलो। ओके, बिलो 25 इट इज अ सॉफ्ट सॉलिड। अगर 25 से कम होगा तो सॉफ्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सोल्यूबल होगा ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ओके, and almost entirely soluble in the hot alcohol and carbon disulfide CS2, that is carbon disulfide में भी ये slightly soluble होगा, और पूरा का पूरा soluble होगा हमारा hot alcohol और carbon disulfide में, slightly soluble होगा हमारा cold alcohol में। तो आपने solubility याद रखनी है, बेसिकली सिंपल सी चीज है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली soluble हो जा रहा है। इफ यू टॉक अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अब इस प्लांट का नाम क्या था, हिडनोकार्पस ऑयल, तो और चौल मोगरा ऑयल। तो अब नाम से मिलते जुलते केमिकल कंपाउंड सबसे पहले हम याद करते हैं। हिडनोकार्पिक एसिड आ गया 48%, देन नाम क्या है प्लांट का, चौल मोगरा, तो देन चौल मोगरिक एसिड 27%, गॉर्लिक एसिड बिल्कुल आसान है, GORLIC, गॉर्लिक एसिड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्लिसराइड ऑफ द पाल्मिक एसिड, ऑयलिक एसिड, बिकॉज ये फैटी एसिड की कैटेगरी में है, तो ये पाल्मिक एसिड, ऑयलिक एसिड इसके अंदर होंगे ही होंगे, नेचुरल सी बात है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर्स भी दिए हैं इसके। सो यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स आल्सो, हिडनोकार्पिक एसिड, दिस इज चॉलमोग्रिक एसिड एंड दिस इज गॉर्लिक एसिड। सो दिस इज साइक्लोपेंटाइल फैटी एसिड, पेंटेन रिंग है तो साइक्लोपेंटाइल फैटी एसिड्स हैं
हिडनोकार्पिक एसिड, ज्वालामुखी एसिड एंड गॉर्लिक एसिड. लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज आपको कभी भी नहीं भूलना है इस ऑयल का. क्या है? यूज्ड इन द लेप्रोसी एंड मेनी अदर स्किन कंडीशंस. ऑल्सो यूज्ड इन द TB, Mycobacterium tuberculosis के अगेंस्ट और Mycobacterium leprae के अगेंस्ट दिस ऑयल इज रिकमेंडेड. Yes, I am repeating. The unsaturated fatty acid of the Cholmugra oil, they possess strong bactericidal effect against Mycobacterium leprae or Mycobacterium tuberculosis. So yes, it is found to be useful in the treatment of the TB, leprosy, psoriasis as well as rheumatism. And always remember, ये it is intended for external use. External uses की बात हो रही है. Next is the beeswax. तो next करते हैं क्रूड ड्रग हमारे सिलेबस में beeswax. Please see the photograph. Beeswax. So also known as the Serraflava. आपने याद रखना है beeswax को और क्या बोलते हैं हम? Serraflava. तो it is obtained purified wax कहाँ से लेते हैं? मधुमक्खी के छत्ते से. Obtained from the honeycomb hive. That is Apis mellifera belonging to the family Apidae. तो हम हनी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है अब आपको चीजें याद हो गई होंगी. Yes, everywhere we will found Jamaica, Egypt, Africa, India, France, Italy, California, etc. So we have completed the preparation also. So I request please watch the video of the carbohydrate जिसमें मैंने आपको पूरा बताया है. ये जो वर्कर बी है इसका रोल है हनीकॉम्ब में नेक्टर सिक्रीशन में. तो आप प्लीज उस वीडियो को देखें क्योंकि मैं प्रिपरेशन इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. तो beeswax कंटेन myriacin, very very important, which is a malicyl palmitate. Okay, along with it also contain cerotic acid, myrcel alcohol, and along with other higher hydrocarbons. Please the structure of the myrcel palmitate. Okay, तो आपको याद रखना है. अगर कलर की बात करें तो येलोइश टू येलोइश ब्राउन. ऑर्डर क्या है? एग्रीएबल एंड हनी लाइक ऑर्डर. If we talk about the uses, so beeswax is used in the manufacturing of ointments, plaster, polishes, etc. So apart from this, it is also used in the candle making industry as well as in the preparation of lipstick, face cream, etc. तो एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है. एक व्हाइट beeswax है, इट इज अडल्ट्रेंट. वो उसका अडल्ट्रेंट यूज करते हैं. आई होप यू रिमेंबर अबाउट अडल्ट्रेशन. हमने पूरा कंसेप्ट डिटेल में पढ़ लिया है. तो प्लीज अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो ऑफ अडल्ट्रेशन ऑल्सो. तो व्हाइट beeswax इज अडल्ट्रेंट ऑफ beeswax जिसे हम येलोज beeswax भी बोलते हैं. और इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? इट इज ऑब्टेन बाय ब्लीचिंग येलो beeswax. Another adulterant is there, that is hard paraffin wax and Japan wax. So now let's start wool. तो यस, ये क्या है? एक शीप. इसका नाम है ओविस एरिस. तो इस शीप से हम वूल फैट ऑब्टेन करते हैं. कैसे? लेट्स स्टार्ट. यू हैव टू रिमेंबर द साइनोनिम ऑल्सो. इसका साइनोनिम क्या है? एनहाइड्रस लैनोलिन. ओके, एनहाइड्रस लैनोलिन. तो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम यस शीप दैट इज द ओविस एरिस. लेकिन कैसे? अगर लैनोलिन की बात करें तो इट इज अ फैट लाइक purified secretion of the sebaceous glands which is deposited in the wool fibers of the sheep. Ovis aries belong to the family Ovidae. तो लैनोलिन की अगर बात करें तो वो तो शीप के सीबेशियस ग्लैंड है जो कि उसके वूल फाइबर्स में ऑब्टेन हम करते हैं. इट बिलोंग टू द फैमिली बोविडे. ओके, और अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे है एनहाइड्रस लैनोलिन की, अगर हम बात करें हाइड्रस वूल फैट की तो इट इज द प्यूरिफाइड फैट लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द वूल ऑफ द शीप ओविस एरिस. तो आपने ये याद रखना है. प्लीज सी दिस लैनोलिन हाइड्रस वूल फैट. इसी के साथ साथ हम एनहाइड्रस भी ऑब्टेन करते हैं. कैसे ऑब्टेन करेंगे? सबसे पहले हम शीप की वूल ऑब्टेन करेंगे. वूल ऑब्टेन करेंगे, कट लगाएंगे. बेसिकली हम अलग अलग ट्रिमर्स इसके लिए यूज करते हैं. सपोज करिए दिस इज द प्रोडक्ट. ज्यादातर हम ये यूज करेंगे वूल ऑब्टेन करने के लिए. तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? हमें वूल ऑब्टेन करनी है शीप को बिना नुकसान पहुंचाए. सो वूल इज कट वॉश्ड विद सोप और अल्कली. सबसे पहले वूल कट करके उसको वॉश करेंगे अल्कली या सोप से. देन एन इमल्शन ऑफ द वूल फैट नोन एज द वूल ग्रीस. जैसे ही हम इसको कट कर लेंगे तो वूल को ऑब्टेन करेंगे
सोप से वॉश करेंगे, देन एक इमल्शन ऑब्टेन होगी जिसे हम क्या कहेंगे, वूल ग्रीस। कुछ इस तरह से हमें वूल ग्रीस देखने को मिलेगी। देन हम लैनोलिन ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, तो रो लैनोलिन इज ऑब्टेन बाय क्रैकिंग द इमल्शन को क्रैक करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, सिंपली क्रैकिंग द इमल्शन विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो सिंपली सबसे पहले आपने एल्कली डाला, एक बेस डाला, देन आपने फिर एसिड यूज कर दिया। देन द वूल ग्रीस फ्लोट्स ऑन द अपर लेयर एंड द फैटी एसिड्स आर डिसॉल्व्ड ऑन द लोअर लेयर। देन दिस लैनोलिन इज प्यूरिफाइड बाय ट्रीटिंग विद सोडियम पेरोक्साइड एंड ब्लीचिंग विद रिएजेंट। तो ब्लीचिंग करेंगे, सोडियम पेरोक्साइड यूज करके हम लैनोलिन को प्यूरिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन। तो एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो सिक्रीशन है बेसिकली इट इज अ सिक्रीशन ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड ऑफ द शीप डिपॉजिटेड ऑनटू द वूल फाइबर। तो जो शीप के सीबेशियस ग्लैंड है वहां से ये सिक्रीशन डिपॉजिट होगी वूल फाइबर्स में। वूल फाइबर्स हमने लिए, कट किए, पहले उसमें एल्कली डाली, देन वी अगेन प्रोसेस्ड इट विद द इमल्शन बना के सल्फ्यूरिक एसिड को हमने यूज किया। देन अगेन with the help of some chemicals, with the help of bleaching, we obtain the purified form of the lanolin. तो इसका यूज क्या है, lanolin is basically very much used in industry। किस तरह से और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या यूज है lanolin, वो हम बाद में देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द, सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यस, इट हैज अ व्हाइटिश येलो कलर, और इज द फेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड टेस्ट इज द ब्लैंड। ब्लैंड टेस्ट है, ब्लैंड का अर्थ है बेस्वाद, तो कोई टेस्ट नहीं है बेसिकली इसका। सो अगर लैनोलिन की बात करें तो लैनोलिन इज अ मिक्सचर ऑफ एस्टर्स एंड पॉलीएस्टर ऑफ 33 हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स एंड 36 फैटी एसिड। तो फैटी एसिड्स ही हैं इसमें बेसिकली। एल्कोहल किस टाइप की हैं, एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं, स्टीरोइड अल्कोहल्स हैं, ट्राइटरपेनोइड अल्कोहल्स हैं, ओके। और एसिड्स किस टाइप के हैं, सैचुरेटेड मोनो हाइड्रोक्सिलेटेड एसिड्स, देन अनसैचुरेटेड नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड एसिड एंड हाइड्रोक्सिलेटेड एसिड। तो ये तीन तरह के एसिड्स आपको याद रखने हैं। देन द लिक्विड लैनोलिन इज रिच इन द लो मॉलिक्यूलर वेट ब्रांच्ड एलिफेटिक एसिड्स अल्कोहल्स, वेयर एज द वैक्सी लैनोलिन इज ऑब्टेन इज हाई इन द हाई मॉलिक्यूलर वेट स्ट्रेट चेन अल्कोहल्स एंड एसिड्स, ओके। और द मेन चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर मेन है, अनसैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। देन अब जैसे लैनोलिन है तो लैनो से क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको याद रखने हैं, लैनोसिरिक, लैनोपाल्मिटिक एसिड, कार्नोबिक एसिड एंड अदर फैटी एसिड, ठीक है। लैनोसिरिक एसिड, लैनोपाल्मिटिक एसिड। लेट्स सी द स्ट्रक्चर, एक दो स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरॉल। हियर इट इज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरॉल, दैट इज C27H46O। दिस इज लिग्नोसेरिक एसिड, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं दो तीन स्ट्रक्चर इसमें, वेरी वेरी सिंपल। तो दे ऑल्सो कंटेन ऑयलिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, ये हमें पता ही है, ये तो होते ही हैं फैटी एसिड्स में, सिटाइल अल्कोहल या सिराइलन, कार्नोबिक अल्कोहल, लैनोस्टिरोल एंड अदर कंपाउंड। दिस इज सिटाइल अल्कोहल, ये क्या है, एलिफेटिक अल्कोहल। तो यस, वी हैव कंप्लीटेड वूल फैट ऑल्सो। अब देयर इज अ सिंपल केमिकल टेस्ट ऑल्सो जिसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। ये टेस्ट क्या है बेसिकली, आप सिंपल याद रख सकते हैं कि वी हैव टू डिसॉल्व 0.5 ग्राम ऑफ द hydrous wool fat in the chloroform, then you will add 1 ml of acetic anhydride and 2 drops of the sulfuric acid. अगर a deep green color is produced, that will indicate the presence of the cholesterol. Positive test आएगा if deep green color is produced. तो 0.5 ग्राम आपने wool fat लिया, then you will dissolve it in chloroform, you will add 1 ml acetic anhydride and 2 drops of the sulfuric acid. If deep green color is produced, that will indicate the presence of cholesterol, is a positive test for the identification of the hydrous wool fat. Now please see the syllabus. हमने syllabus खत्म कर लिया। castor oil, we have completed cholmogro oil, beeswax as well as wool fat. So yes, we have completed this topic, lipids including fats, waxes and fixed oil. So at last I acknowledge all the sources I have used to prepare this video, especially SlideShare, Google Images, etc. So this video is for education purpose only, no commercialization involved. Thank you very much for your patience and listening.